Hello, good morning everyone. This is Irfan sir and I am here to teach you standard 12 biology chapter, the first chapter, reproduction in organism. So a student, reproduction, you know that reproduction is a life process. So come on, tell me, reproduction is really a process of life. Without reproduction, life cannot sustain. Did you feel? So you will get so many answer, so many criticized type question you will create, and finally you come to the point that okay, reproduction is okay. It may be possible and it may not be possible. So reproduction in standard 12 in organism, we have already discussed this chapter in standard 10 also. Now we will discuss in a very expand way, in a big manner. Standard 12, after standard 12 you will get so many ideas to build मेडिकल लाइन एंड अदर लाइन. सो रिप्रोडक्शंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है. यू नो दैट रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच continuation of generation is going on. This is reproduction. The process by which we can say like begets like. जैसा रहता है वो वैसे ही देता है. ये भी एक्सप्लेन होता है रिप्रोडक्शंस का. So reproduction is a process in which an organism reproduce new members of its own kind. Reproduction is a process in which an organism reproduce new member of its own kind. So क्या क्या जाने हम लोग इसमें. New member produced. This is in the process of reproduction. Like example, man. Human beings. What it produce? Baby. Lioness. Cub. Right? Rose plant, it will produce rose plantlets through seeds. Cat, kitten. So many examples are there. और ये एग्जाम्पल्स हम लोगों को बता देते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने ही जैसे न्यू मेंबर्स प्रोड्यूस करते हैं. लायनस, टाइगर, ये सब अपनी जैसे मेंबर्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ. अगर रिप्रोडक्शंस ना हो तो ये पॉसिबल है कि वो प्रजाति लुप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए. सो कम टू द पॉइंट, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं. ठीक है. सो रिप्रोडक्शंस. अब है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. asexual reproductions and sexual reproductions. एक और नाम आता है इन दोनों के बीच में जिसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस. asexual reproduction, the reproduction in which sexes are not involved. Sexual reproduction, the reproductions in which sexes are involved. Vegetative reproduction, the reproduction in which vegetative part of the body other than reproductive part
having ability to produce new member. This is vegetative reproduction. Sometimes they both are same, sexual reproductions and vegetative reproductions. Sorry, this one same. This is different. सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस को एक ही जैसा मानते हैं कहीं कहीं, बट इसका एक पार्ट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, वेजिटेटिव पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ही, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें कि हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शंस इन विच sexes are not involved. फर्स्ट पॉइंट याद रखने वाली, इट इज यूनिपैरेंटल, एक पेरेंट्स, मेल फीमेल होने की जरूरत नहीं है। नो वेरिएशन, चेंजेस पॉसिबल नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। एग्जाम्पल, मोस्टली unicellular organism. So the characteristic in sexual reproductions, sexes are not involved, means there is no requirement of male and female sexes for asexual reproductions. It is uniparental, one parent is enough. No variation, whatever offspring produced from their parents, the genetic material are same, genetically identical. No variation, it means genetically identicals, मतलब दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम्स होता है, पेरेंट्स का भी और न्यू मेंबर्स का भी। एग्जाम्पल्स मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सब आ जाते हैं। दिस इज अबाउट asexual reproduction. In sexual reproduction, the reproduction in which sexes are involved, और आपको स्टैंडर्ड 12 में पढ़ना है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो सिस्टम्स आपको पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इवन यू ऑल्सो हैव टू गेट नॉलेज इन सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी, रिप्रोडक्शंस इन फ्लावर, फ्लोरिंग पार्ट्स, रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स में? फ्लावर्स, तो वो पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पे आपको बस बेसिक आइडिया खूब अच्छे से जान जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस यहाँ पे देखें, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड 10th CBSE में भी आप लोगों ने सेकेंड टर्म में पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10। Now asexual reproduction is of two types. The first one is fission. Fission, the process by which an organism divide itself and produce two member. The process is known as fission. See, I'm taking example of amoeba. Nucleus dividing, which is called karyokinesis.
division of nucleus, and finally in third step this is plasmolysis, breaking of plasma membrane, and finally two daughter amoeba produce. This is nucleus. That figure showing by fission. This fission, what happened in this fission? Single amoeba, single parental amoeba divide itself and produce two daughter amoeba. These are the daughter amoeba. देखो आप लोग याद रखोगे, डाउटर वर्ड ही यूज होता है, ठीक है। डाउटर एमीबा हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि फीमेल है, फीमेल हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, मेल हैव नॉट, तो इसलिए हम लोग सन अमीबा कभी नहीं लिखते हैं, सन जैसा वर्ड कहीं नहीं सुनोगे बायोलॉजिकल टर्म में, डाउटर वर्ड यूज़ करोगे, तो हम लोग यहाँ पे डाउटर एमीबा लिखती हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया सिंपल फिजन। तो व्हाट हैपेंड इन फिजन? द सिंगल, जैसे कि फिगर से समझ में आ रहा है, सिंगल पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ माइटोटिकली, याद रखो, हम यहाँ पे लिख दे रहे, सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है, इनटू टू। और आप लोग को पता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन में एक से दो प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके से एमीबा से दो एमीबा प्रोड्यूस होता है। अब ये जो फिजन है, ये फिजन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स आपने सुने होंगे, जो स्टैंडर्ड 10 में आपने नहीं सुने होंगे, 12 में सुनना पड़ेगा। फिजन इज ऑफ टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देखिए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का यही फिगर है। व्हाट हैपन इन बाइनरी फिजन? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन एमीबा। सो यू विल राइट, you will draw this process, this figure, and explain the process by which amoeba divide itself and produce into two. This is binary fission, ठीक है। It takes place in most of the unicellular organism. But what happen in multiple fission? In a multiple fission, one unicellular organism can produce more than two progeny, two offspring, more than two। मतलब बाइनरी फिजन में सिर्फ दो प्रोड्यूस हो रहा है, और मल्टीपल फिजन में दो से कई गुना ज्यादा होता है। ये अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल इन्वायरमेंट एंड मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन अनफेवर इन्वायरमेंट। होता क्या है मल्टीपल फिजन्स पे, अच्छे से यहाँ पे देखो। तो देखिए, हम आपको मल्टीपल फिजन बता रहे हैं। इन्हें मल्टीपल फिजन व्हाट हैपन? इट स्टार्ट इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट पता है ना किसको कहते हैं? वैसे इन्वायरमेंट जो आपको सूट ना करे। अगर वैसे वक्त में अमीबा को रिप्रोडक्शंस करना है तो सबसे पहले ये अपने चारों तरफ क्या कर लेता है? एक मोटा कवरिंग डेवलप करता है। ये देखिए इस तरीके से, एक मोटा कवरिंग डेवलप करता है। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं सिस्ट। दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। अब उसके बाद
ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स। सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म गैदर होने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मल्टी डिवीजन। इसके बाद सारे साइटोप्लाज्म आपस में इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। These are daughter nuclei. फाइनली एक समय आता है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आ जाता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और सारे के सारे रिलीज होना चालू। तो these are what? These are daughter amoeba. When favorable environment comes, इस तरीके से मल्टीपल फिजन कंप्लीट होता है 1 by 1 स्टेप्स में। ठीक है, ध्यान से देखें। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, इट डेवलप ए सिस्ट द हार्ड कवरिंग बॉडी अराउंड द सेल, देन न्यूक्लियर मल्टी डिवीजन टेकिंग प्लेस, nucleus divided into many pieces, small pieces, and each pieces accumulate some cytoplasm. Finally, daughter nuclei form with plasma membrane, and as favorable environment come, it will release out from the body. ठीक है, so this is all about multiple fission. In examination, you will face question like the question give differences between binary fission and multiple fission. Why amoeba cannot reproduce binary multiple fission in favorable environment? तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उसका आंसर इस टॉपिक से ले सकते हैं। ओके फाइन। सो आई होप कि फिजन आपको समझ आया, और फिजन में आपने दो पढ़ लिया, बाइनरी और मल्टीपल। ठीक है, देखो बाइनरी और मल्टीपल के अलावा, मिटा दे रहे, बाइनरी और मल्टीपल के अलावा आप लोग और भी नाम सुने होंगे फिजन का, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और ट्रांसवर्सल डिवीजन। ये क्या है? बहुत आसान है। लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन इज क्लियर विथ टर्म लंबा लॉन्गिट्यूडनल्स। अगर लंबा टॉल डिवीजन से अगर डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन से होता है, सिमेट्री अगर लॉन्गिट्यूड हो, इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इस तरीके से जब डिवीजन होता है तो ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन। देखिए हम आपको एक फिगर के साथ बता दे रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन्स आप देखोगे यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना इस तरीके से शेप होता है यूग्लिना का। तो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लंबा, इस तरीके से देखो, टॉल, दो डिवाइड हो जाएगा,
तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. ट्रांसवर्सल लाइक इन पैरामीशियम. क्या होता है पैरामीशियम? इस तरीके का पैरामीशियम होता है और ये इस तरीके से. तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है ये है लॉन्गिट्यूडनल्स के लिए और ये है ट्रांसवर्सल्स के लिए. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है. सो फिजन आई होप इज क्लियर विथ यू. नाउ अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वाले बर्डिंग प्रोसेस में. बर्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ ए सेक्सुअल process of reproduction which takes place in hydra. ठीक है, how budding takes place. how budding taking place. So budding में होता है क्या है, a small baby plants, bird means किसको कहते हैं? baby flowers. bird आपने कली नाम सुना होगा, तो baby flowers. So the bird like structure coming out is in the form of an outgrowth releasing from the parent body. That bird develop into an individual, into an adult form. This is the process of reproduction is called budding. So see in hydra example. हाइड्रा में पढ़ते हैं. देखो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है. ये टेंटैकल्स है. दीज आर द टेंटैकल्स, शाफ्ट, बेसल बॉडी. ठीक है, ये सब है स्ट्रक्चर. यहां से एक आउटग्रोथ निकला. दिस इज एन आउटग्रोथ. विच इज कॉल्ड बर्ड. Gradually develop from parents. Finally it detach from पेरेंट्स. कैसे डिटैच होता है? ये अब जब ये गिर जाता है ग्राउंड्स पे तो फिर ये डेवलप कर जाता है. दैट बेबी plant, baby hydra releasing from parents. This process of reproduction is known as budding. So this reproduction takes place with the help of bird. The reproduction takes place with the help of bird. That process is called budding. Keep in mind these all are uniparental and the members, the progenies coming from parents are identical. Next is third one, fission okay, budding okay. Next is fragmentation. It's a very easy process, fragmentation. फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, छोटा पीस, यही चीज होता है. ये फ्रैगमेंटेशंस किस में होता है? इट इज इन स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा में फ्रैगमेंटेशंस आपको देखने को मिले. क्या होता है स्पायरोगैरा में? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पायरोगैरा. वी आर ड्रॉइंग जस्ट रफली फिगर. ठीक है, ठीक है. अब ये जो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट देते हैं.
ये देखो, ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकल ब्रेकिंग होता है। स्पायर वगैरह आप लोग देखोगे कि बहुत सारे तालाब वगैरह होते हैं जहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं होने लगता है, तो पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर्स का पूरा लेयर फैल जाता है, वो एक्चुअली स्पायर वगैरह होता है। ठीक है, अब वो थ्रेड पतला सा टेप जैसा होता है और वो लंबा होते जाता है। ये इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जब ये छोटे छोटे पीस में डेवलप होता है तो हर एक पीस अपने आप को फिर बड़ा कर लेता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 3 पीस कर दिया, अब हर एक पीस जो है न्यू स्पायर वगैरह बना लेगा, न्यू एडल्ट स्पायर वगैरह, सेम न्यू स्पायर वगैरह, न्यू स्पायर वगैरह, इस तरीके से नया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ 1 से 3 स्पायर वगैरह तैयार हो गया। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोड्यूसिंग न्यू मेंबर इन ए फ्रैगमेंटल फॉर्म, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इट टेक्स प्लेस इन स्पायर वगैरह। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। देखो, रीजनरेशन जो है वो कुछ फ्रैगमेंटेशन जैसा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें। रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में हमेशा डिफरेंस पूछ लिया जाता है। आपको दोनों प्रोसेस सेम लगेगा, लेकिन ना मेन चीज़ जो हम आपको बताएंगे उस पर ध्यान देना। ठीक है, रीजनरेशन, इसमें ध्यान देना। रीजनरेशन में इसमें है क्या एक्चुअली, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं प्लानेरिया। देखो, प्लानेरिया, ये स्ट्रक्चर हमने प्लानेरिया का ड्रॉ कर दिया, इसका 3 पीस काट दिए। ये इसका लॉस्ट पार्ट को डेवलप करता है। ठीक है, प्लानेरिया का देखिए, आप ध्यान दोगे तो आपका लॉस्ट पार्ट डेवलप हो जा रहा है। क्या समझ आ रहा है इससे? रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल रीगेन इट लॉस्ट पार्ट, अपना लॉस्ट वाला पार्ट को ये फिर से रीगेन कर लेता है। इसमें खास किस्म का स्टेम सेल्स होता है। ये स्टेम सेल्स पूरी बॉडी में फैला होता है, जिस कारण हर एक पार्ट जो है ना डेवलप कर जाता है नए पार्ट्स में। ठीक है, सो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन आपको दोनों सेम लगता होगा, बट फ्रैगमेंटेशन एक्चुअली क्या है, उसमें वो ऑटोमेटिक टुकड़ा टूट जाता है एक समय होने के बाद और फिर वो प्रोड्यूस कर देता है एडल्ट फॉर्म में छोटा से। लेकिन रीजनरेशन इसमें अपना लॉस्ट पार्ट को वो डेवलप कर लेता है। जैसे इंसानों के, जैसे तुम देखोगे कि छिपकली होती है, छिपकली का दुम टूट जाता है तो वो फिर से डेवलप कर लेती है। लेकिन अगर छिपकली का दुम से नया छिपकली बन जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो उसको रीजनरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए डो नॉट कन्फ्यूज, ध्यान से दो मेरी बातों को। रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन ये 2 अलग अलग प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, द फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू फॉर्म, एंड रीजनरेशन में क्या होता है, द लॉस्ट पार्ट डेवलप फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रीजनरेशन। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, आप फंगस में देख लो, एक ब्रेड होता है। ब्रेड को जब हम लोग फेंक देते हैं
तो उसमें छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, ब्रेड माउल्ड, इन सब में स्पोर फॉर्मेशंस होता है, फंगस डेवलप हो जाते हैं, मतलब प्लांट्स डेवलप हुआ, ठीक है, एंड प्लांट्स रिलीज स्मॉल स्मॉल स्पोर्स फ्रॉम द बॉडी, दैट स्पोर्स गेट फेवरेबल इन्वायरमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग and start developing. It takes place in fungus. These are in very short form I am explaining. Okay, fine. Next is vegetative propagation, the most important और आज के दौर में सबसे खास vegetative propagation. It is a technique. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक अभी बहुत यूज़ हो रहा है। टिश्यू कल्चर्स के बारे में आपने सुना होगा, स्टैंडर्ड 10 में भी आपने पढ़ा था टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाट वी लर्न हियर इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द पार्ट ऑफ ए प्लांट अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैविंग एबिलिटी टू डेवलप न्यू मेंबर्स, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative part, the part of a body other than reproductive part, the part of the body other than reproductive part, this is vegetative part, and development of new organism from that part is called vegetative propagation. Let us example potato, ठीक है, potato, we know the plants potato having seed. If a farmer develop potato from its seeds, it will take a very long time of 15 months. But by potato, if a farmer develop potato, by potato, if a farmer develop potato, it will take only 3 or 4 months. So seeds have ability to develop, to germinate, to grow new plants. But other than seed or vegetative part, if any part of the plant having ability to develop new members, this part is known as vegetative part, and development and means reproductions by this process is known as vegetative propagation. Some examples are potato, underground stem, leaf, bryophyllum, leaves of bryophyllum is vegetative part. So many parts are there, you know, rose plant, that twig, stem of rose plant, रोज का प्लांट्स का पतला सा ब्रांच काट देते हैं इस तरीके से, उसको छील के लगा देते हैं तो नया प्लांट डेवलप कर जाता है ना। तो ये सब पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इन अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी एज पर माई बेस्ट explain the process, this headings, reproductions in organism chapter. This is all about, today we discuss asexual reproductions, and in the next class we will discuss sexual reproduction. Okay, fine. Thank you and have a nice day.